صنف کی تعریف پوچھی جاتی ہے اسی سے سوال نکالا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر غزل کی تعریف پوچھی جاتی ہے تو پھر غزل کے بارے میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ غزل اردو میں کہاں سے آئی ہے۔ تو ہمارے ذہن میں مختلف سوالات یا مختلف جوابات ہوتے ہیں۔ میرے ذہن میں جو ایک عام سی بات یہ ہے کہ غزل فارسی سے اردو میں آئی ہے، فارسی کی ہی صنف ہے غزل، اور غزل فارسی میں بھی جو قصیدے کی تشبیب سے نکلی ہے جسے نصیب بھی کہا جاتا ہے، تو تشبیب سے غزل بنی ہے، اور غزل جب اردو میں آئی ہے تو اردو میں ایک غزل کو بہت ہی زیادہ مقبولیت حاصل ہو گئی، اور آہستہ آہستہ غزل اردو کی اہم ترین اصناف میں شمار کی جانے لگی ہے۔ تو یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اردو غزل کے حوالے سے جو ابتدائی اہم شعراء ہیں یا اردو غزل کے پہلے شاعر ہیں یا ابتدائی شعراء ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے دو نام اہم ہیں۔ اردو کے پہلے شاعر تو مسعود صاحب سلمان کہلاتے ہیں، اور اس کی بنیاد امیر خسرو کے دیوان کی وہ سطریں ہیں جس میں انہوں نے یہ تحریر کیا ہے کہ مسعود صاحب سلمان کے 3 دیوان ہیں، جن میں ایک عربی، ایک ترکی، ایک عربی، ایک فارسی اور ایک ہندی زبان میں ہے۔ تو اس کو بنیاد بنا کر مسعود صاحب سلمان، جن کا تعلق لاہور سے تھا، انہیں اردو کا پہلا شاعر مانا جاتا ہے۔ پھر اردو کے پہلے صاحب دیوان یا صاحب کلیات شاعر کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو یہاں قلی قطب شاہ کا نام سامنے آتا ہے۔ قلی قطب شاہ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں اور پہلے صاحب کلیات بھی ہیں۔ یہ سوال کمیشن میں بھی آ چکا ہے، اور قلی قطب شاہ کے حوالے سے جو مختلف سوالات سامنے آتے ہیں، قلی قطب شاہ کس سلطنت کے بادشاہ تھے؟ یقیناً آپ سب کے علم میں ہوگا گولکنڈہ کے بادشاہ تھے، اور انہوں نے اپنی شاعری میں 17 تخلص استعمال کیے۔ تو یہ سوال بھی انٹرویو میں پوچھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آگے بڑھتے ہیں تو پھر ولی دکنی کے حوالے سے بھی سوالات پوچھے جا سکتے ہیں کہ دہلی میں غزل نے کب مقبولیت حاصل کی تھی؟ تو وہ ولی دکنی کا دیوان تھا۔ جب ولی دکنی کا دیوان دہلی پہنچا تو وہیں سے دہلی میں شاعری کی بنیاد پڑتی ہے، اور دہلی میں غزل کو اہمیت اور مقبولیت حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہیں سے اردو شاعری کی پہلی تحریک کا بھی آغاز ہوتا ہے۔ اردو شاعری میں جو پہلی تحریک ہمارے سامنے آتی ہے وہ اہام گوئی کی تحریک ہے۔ اہام گوئی کی تحریک کا آغاز دہلی سے ہوا تھا، اور اس کے بانی شاہ مبارک آبرو ہیں۔ اس حوالے سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ ولی دکنی کا جو دیوان دہلی پہنچا تھا اس میں کافی سارے اشعار ایسے تھے جن میں اہام بھی موجود تھا، تو دہلی کے اکثر شعراء نے اسی اہام کو دیکھتے ہوئے یہ نتیجہ نکالا کہ شاعری میں اہام کو ضرور برتنا چاہیے۔ اسی کو بطور فن برتنا شروع کر دیا دہلی کے شعراء نے، جن میں شاہ مبارک آبرو، شاکر ناجی، شرف الدین مضمون، شاہ حاتم اور استاد شاعر خان آردو بھی شامل تھے۔ ان تمام شعراء نے اس زمانے میں اہام گوئی کی شاعری خاص طور پر کی ہے، اور اسی اہام گوئی کی شاعری کو اردو شاعری کی پہلی تحریک بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ جو جب تحریک کی بات ہوتی ہے تو اردو ادب میں میرا خیال ہے کہ کوئی باقاعدہ تحریک اس سے پہلے نہیں آتی ہے۔ ایک سوال ابھی گردش کر رہا تھا کہ اردو زبان کی پہلی تحریک کون سی ہے، اور مختلف کتابوں میں جو عالمی ادبی معلومات قسم کی کتابیں ہیں ان میں ایک جواب یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ پہلی تحریک امیر خسرو کی تحریک ہے، یا کہیں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا تذکرہ آتا ہے۔ تو اسی طرح مختلف نام ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں، اور آپ بھی مطالعہ اپنا دیکھیے گا، کہ اردو ادب میں جو باقاعدہ پہلی تحریک ہمیں نظر آتی ہے وہ اہام گوئی کی تحریک ہے، جس کا آغاز دہلی سے ہوا تھا اور جس کے بانی شاہ مبارک آبرو تھے۔ اس کے بعد دیگر تحریکوں کا آغاز ہوتا ہے، رد عمل کی تحریک، پھر سادہ گوئی کی تحریک، اور پھر دیگر جو تحریکیں ہیں جنہوں نے اردو شاعری کو مقبول اور اہم بنانے میں بھی مرکزی کردار ادا کیا۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اچھا، آج میں ذرا مختصراً مجموعی طور پر کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ غزل کے حوالے سے بات کی تھی، نظم کے حوالے سے بھی سوال پوچھے جا سکتے ہیں۔ نظم کی تعریف، نظم کی جو اقسام ہیں ان کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ نظم کی اقسام کے حوالے سے ایک سوال سامنے آتا ہے کہ نظم کی اقسام کی مثالیں کس طرح دی جائیں، یا نظم کی
को मिसालों के साथ किस तरह समझाया जा सकता है। तो मैं चंद नज़मों के हवाले से आपको बता देता हूँ। नज़मों की जो अक़साम हैं उनमें पाबंद नज़्म, नज़्म मुअर्रा, आज़ाद नज़्म और नसरी नज़्म शामिल है। पाबंद नज़्म तो शेरी है, ये मुख्तलिफ शेरी है, ये तो में लिखी जाती है और उसमें काफ़ी रदीफ की पाबंदी की जाती है, यानी उसमें जो मुरब्बजा शेरी हैयतें हैं उससे हटकर नहीं होता, उसमें काफ़िया रदीफ की भी पाबंदी की जाती है। मुखम्मस, मुसद्दस, रुबाई और दीगर असनाफ में या गज़ल की हैयत में या दीगर हैयतों में भी नज़में लिखी जा सकती हैं, तो इसे पाबंद नज़्म कहा जाता है। अगर नज़्म मुअर्रा की बात हो तो नज़्म मुअर्रा से मुराद वो नज़्म होती है जो जिसमें बहर की पाबंदी की जाती है लेकिन काफिया रदीफ की पाबंदी नहीं होती। इसकी मिसाल फैज़ अहमद फैज़ की मशहूर नज़्म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब ना मांग है। अगर उस नज़्म को आप देखें तो नज़्म मुअर्रा के ज़िम्रे में आती है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब ना मांग, ये पूरी नज़्म आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इसमें काफिया रदीफ की पाबंदी नहीं है लेकिन बहर एक ही है और वजन में है। इसके अलावा अगर आज़ाद नज़्म की बात हो तो आज़ाद नज़्म एक ही बहर पर होती है लेकिन उसमें मिसरे छोटे बड़े हो सकते हैं। इसी तरह जब नसरी नज़्म की बात होती है तो नसरी नज़्म में तो सिर्फ तख़य्युल या शेरियत होना लाजमी होता है, उसके अंदर ना बहर की पाबंदी होती है ना कोई ख़ास वज़न की पाबंदी होती है, बल्कि नस्र में किसी शेरी ख्याल को पेश कर दिया जाता है टुकड़ों की शक्ल में, उसे नसरी नज़्म भी कहा जाता है। नज़्म इब्तिदाई नज़्म निगारों के हवाले से उर्दू में जो नज़्म के पहले शायर हमें नज़र आते हैं नज़ीर अकबर आबादी, फिर अंजुमन पंजाब का जो अहद है उस हवाले से भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि अंजुमन पंजाब का आगाज़ कब हुआ था, कहाँ से हुआ था और उसके रूहे रवां कौन थे, और उनके उसी अंजुमन पंजाब के तहत मुशायरों का आगाज़ कब हुआ था और अंजुमन पंजाब के तहत कितने मुशायरे हुए थे। तो इन बातों के जवाबात तो मैं साथ ही साथ आपको देता रहता हूँ। यकीनन कुछ चीज़ें अक्सर चीज़ें आपको मालूम होगी, दोबारा हमारा रिवीजन हो जाएगा और डिस्कशन का मकसद भी रिवीजन करना है। तो 1865 में अंजुमन पंजाब का आगाज़ हुआ था और ये अंजुमन पंजाब दरअसल अंजुमन मुतालिबे मुफीदा पंजाब के नाम से वजूद में आई थी और इसके जो सदर थे वो डॉक्टर लाइट्स और इसके जो जनरल सेक्रेटरी थे वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद थे। 1874 में जदीद नज़्म का आगाज़ होता है और इस सिलसिले में एक बाकायदा मीटिंग हुई थी जिसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने न सिर्फ लेक्चर दिया था बल्कि अपनी मसनवी शब कद्र भी पढ़ी थी। तो जदीद नज़्म के हवाले से जो पहले शायर हैं वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं और उनकी नज़्म शब कद्र या मसनवी की शक्ल में जो थी नज़्म वो उर्दू की पहली जदीद नज़्म करार पाती है। और उसी मीटिंग में उसी निशस्त में ये फैसला हुआ कि उर्दू में नज़्म के मुशायरे मुनक्किद कराए जाएं जो मौज़ूआती हों और इसी सिलसिले में पहला मौज़ूआती मुशायरा मई 1874 हुआ था जिसका मौजू बरसात था। इसी मुशायरे में अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपनी मशहूर ज़माना नज़्म बरखा रुत भी पढ़ी थी। फिर अगर हाली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बाद नज़्म के जो बड़े शायर बल्कि नज़्म के सबसे बड़े शायर हमें नज़र आते हैं वो अल्लामा इकबाल हैं। अल्लामा इकबाल एक अहम तरीन मौजू है। अल्लामा इकबाल न सिर्फ अहद साज शायर हैं बल्कि उर्दू नज़्म का सबसे बड़ा नाम है। तो इकबाल के हवाले से भी सवालात पूछे जा सकते हैं। इकबाल के हवाले से भी मैं सवालात या मौज़ूआत इकट्ठे कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि आइंदा किसी डिस्कशन में इकबाल के हवाले से भी तफसीली मुताला आपके सामने पेश कर दिया जाए। तो इकबाल को भी हमें ख़ास तौर पर देखना पड़ेगा, उनके मौज़ूआत, उनके फ़िक्र व फ़लसफ़े जो मुख्तलिफ़ फ़लसफ़े हैं, मिसाल के तौर पर खुदी है, हरकत व अमल है या ख़वातीन के हवाले से या हज़रत इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है या इश्क़ और अक़ल के जो मुकाबला है वो इकबाल के यहाँ किस तरह सामने आता है। इस तरह के ऐसे सवालात हैं जो इकबाल के हवाले से पूछे जा सकते हैं। फिर इकबाल पर क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखा गया है, इकबाल के मुख्तलिफ पहलुओं पर, तो इकबाल के अलकाबात भी बहुत ज़्यादा हैं, किसने कौन सा लक़ब उन्हें दिया था, वो बातें भी
शायद इंटरव्यू में पूछ ली जाए। फिर नज़म के जो दीगर अहम शोरा हैं जिनमें जोश मलिया बाजी जो शायर शबाब और शायर इनकलाब हैं, फैज़ अहमद फैज़ जो तरक्की पसंदों के इमाम भी कहलाते हैं और जिन्हें लीनन अमन इनाम भी मिला था। इसके अलावा अख्तर शिरानी जो शायर रोमान हैं, हफीज़ जालंधरी जो शायर पाकिस्तान और कौमी तराने के खालिक भी हैं, शाहनामा इस्लाम भी उनकी एक अहम तसनीफ़ है, और एहसान दानिश जो शायर मजदूर कहलाते हैं, उनके हवाले से सवालात पूछे जा सकते हैं। फिर नज़्म के हवाले से एक बड़ा अहम दौर हल्का अरबाब ज़ौक़ के तहत सामने आता है। हल्का अरबाब ज़ौक़ के तहत आज़ाद नज़्म ने ख़ास तौर पर तरक्की हासिल की और आज़ाद नज़्म के अहम छोरा हल्का अरबाब ज़ौक़ के ज़रिए सामने आए। उनमें नून मीम राशिद और मीरा जी के नाम काबिल ज़िक्र हैं। नून मीम राशिद का पहला आज़ाद नज़्म का मजमुआ मावरा के नाम से 1941 में शाया हुआ था। ये इस लिहाज से भी अहमियत का हामिल है कि ये उर्दू में आज़ाद नज़्म का पहला शेरी मजमुआ था। इसके अलावा सनाउल्लाह डार यानी मीरा जी भी जदीद नज़्म के हवाले से ख़ास अहमियत के हामिल हैं, बल्कि जदीद नज़्म का उन्हें मुजद्दिद भी कहा जाता है, तो उनके हवाले से भी कुछ ना कुछ मालूमात हमें होनी चाहिए। फिर मजीद अमजद भी एक अहम शायर हैं, गो के उनका ताल्लुक किसी ख़ास तहरीक या ख़ास हल्के से नहीं था, लेकिन वो भी आज़ाद नज़्म के हवाले से एक बड़े और अहम शायर हमें नज़र आते हैं। मजीद अमजद की चंद अहम नज़मों के उन्वानात भी पूछे जाते हैं, जैसे तोसीए शहर है उनकी नज़म मशहूर है, या पनवाड़ी उनकी एक मशहूर नज़म है। इसी तरह चंद अहम नज़मों के हवाले से भी पूछे जाने के इम्कानात होते हैं, बल्कि जो कमीशन के तहरीरी इम्तिहान हुए हैं उसमें तो ये सवालात पूछे भी गए हैं, तो ये भी चीज़ें हमें मद्देनज़र रखना होंगी। अगर मरसिए की बात हो तो मरसिए में तो मरसिए की तारीफ के साथ उसकी तारीफ में बहुत ज़्यादा अहम शोरा हमें नज़र नहीं आते, लेकिन अनीस और दबीर क्योंकि उर्दू मरसिए के उरूज के शायर हैं, या जिन्होंने उर्दू मरसिए को बामे उरूज पर पहुंचाया, तो इनके हवाले से सवालात पूछे जाने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं।